ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک ٹائمز کی سرخی تقریباً 4 ماہ کی جنگ کے بعد کیا بدلا پر برہم ہو گئے۔ کہا یہ سرخی گمراہ کن ہے۔ اخبار کے کرپٹ اور ناکام تجزیہ کار حقائق کو مسخ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کہتے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کی فوج، بحریہ، فضائیہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے میزائل، ڈرون اور لانچنگ پیڈ تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کی معیشت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ مہنگائی 250% تک پہنچ گئی ہے اور فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ایران کے 2 بڑے رہنما بھی ختم ہو چکے۔ اس کے برعکس امریکی اسٹاک مارکیٹ روزگار کے مواقع ریکارڈ بلندیوں پر ہیں۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے تجزیہ کاروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا وہ حقائق بیان نہیں کر رہے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ مقامی میڈیا سے گفتگو میں نعیم قاسم کا کہنا تھا اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ لبنان جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دیں گے۔ نتن یاہو نے ایران کے خلاف جارحیت کے لیے ٹرمپ کو آمادہ تو کر لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالیہ جنگ کے بعد ایران مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے آبنہ ہرمز کی دوبارہ بندش پر ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں رکاوٹ صدر ٹرمپ نے پیدا کی ہے، ہم نے نہیں۔ ہم آبنہ ہرمز کا راستہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کا کھلنا اور اس سے محفوظ گزرگاہ بنانا یورپ کے مفاد میں ہے۔ ہماری توانائی فراہمی اور اقتصادی بحالی کے بھی مفاد ہیں۔ بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانا یورپی مفاد میں ہے۔ یہ ہماری توانائی کی سپلائی اور معاشی بحالی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاز دوبارہ محفوظ طریقے سے گزر سکیں۔ ہم کسی لڑائی یا جنگی کارروائی میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اس عمل میں مثبت کردار ادا کریں۔ آبنہ ہرمز کی دوبارہ بندش کے ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ہمارا مفاد یہی ہے کہ آبنہ ہرمز دوبارہ کھل جائے، کسی معاہدے اور ڈیل کے ذریعے، نہ کہ طاقت کے ذریعے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہم نے مذاکرات میں ہمسائے ممالک کو باضابطہ طور پر بتا دیا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی معمولی غلطی پر ہمسائے ممالک کی وہ جگہیں دفاع کے لیے ہمارا جائز ہدف ہوں گی۔ محمد رضا عارف نے کہا ایران اور عراق کی 8 سالہ جنگ کے بعد بھی ہم آگے بڑھے تھے۔ ہماری تہذیب بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم بڑے بھائی ہیں اور بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھے گا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے جنازے اور تدفین کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ انچارج مرکزی کمیٹی کا کہنا تھا شہید علی خامنہئی کو 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جنازے کی تقریبات کا آغاز ہفتہ 4 جولائی کو ہوگا۔ 6 جولائی کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ان کے داماد ڈاکٹر مصباح الہدیٰ باقر، بیٹی سیدہ بشریٰ، بہو زہرا احداد عادل اور نواسی زہرا محمدی کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ 8 جولائی بروز بدھ خامنہئی کے جنازے کو نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ تہران، نجف اور کربلا میں جنازے کی تقریبات کے بعد ان کے جسد خاکی کو مشہد لایا جائے گا، جہاں 9 جولائی کو جنازے کی مرکزی تقریب ہوگی۔ علی خامنہئی کو امام رضا علیہ السلام کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں دنیا بھر سے مذہبی، سیاسی، علمی اور حکومتی عہدیداران کی شرکت ہوگی۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے سمجھ لیا تنازعات کا واحد حل سفارت کاری ہے۔ امریکہ ایران جنگ تباہ کن تھی، معیشت پر انتہائی منفی اثرات سامنے آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں 3 تکنیکی ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ تکنیکی کمیٹیاں ایران کے جوہری معاملے، منجمد اثاثوں کی واپسی اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت کر رہی ہیں۔ یورینیم افزودگی کے ذخائر کم سطح پر لانے کے لیے اتفاق ہو گیا۔ پاکستان نے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ثالثی کو کامیاب بنایا۔ امید ہے جاری مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا وقت آ گیا ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے۔ سی بی ایس نیوز سے انٹرویو میں لنزے گراہم نے کہا مگر یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایران ابراہم معاہدے میں شامل نہ ہو جائے۔ ایران بھی اس میں شامل ہوگا چاہے امریکہ سے ڈیل طے پائے یا نہیں۔ لنزے گراہم نے انکشاف کیا کہ ایران سے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکی صدر ٹرمپ بزور قوت آبنہ ہرمز کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ This deal fails,
President Trump is going to take the Strait of Hormuz over by force. The United States will control the Strait of Hormuz. We'll charge a fee for all those who go through to pay for the operation. And we're going to expand the Abraham Accords in calendar year 2026. We're going to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords, and which is the biggest change in 5,000 years in the Mideast. And if Iran contests control of the Strait of Hormuz by the United States, we will obliterate them. And if Iran continues to attack Israel and Lebanon, the new policy will be we'll hit Iran. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 23 जून से खलीजी ममालिक का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मार्को रूबियो अपने दौरे में ख़ित्ते से मुताल्लिक़ मुतादिद अहम उमूर पर बातचीत करेंगे, जिनमें अमरीका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त, आबनाए हरमुज़ से बहरी जहाज़ों की मुकम्मल, आज़ाद और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की कोशिशें और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ख़ित्ते के ममालिक की मुश्तरका तरजीहात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हम सबको ज़ाती अनाज से निकल कर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर का इजहार ख्याल। कहा, सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं। बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात हर हाल में कराई जाए। अपने जाती ईगो से निकलना होगा। हम तो समझ रहे थे, हाथ मिला रहे थे कि हाँ आपकी तरफ से हाथ आएगा। अचकज़ई साहब ने खुद अपने हाथ आगे बढ़ाया। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, महमूद उर रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, गवर्नर साहब को वंस अगेन परसू सजाएं दी। जो आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू की कि इसको हमेशा के लिए रोके। 35 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, हमारी लीडर से मुलाकात नहीं हो रही, उसकी बीवी से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर का जाना मना है। बहुत तशवीश है। लास्ट टाइम उसकी बेटी की मुलाकात नहीं हो सकी, कल दोबारा दिन है मुलाकातों का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके वसातत से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इन मुलाकातों को ना रोकें। फैमिली को हर हाल में मिलने, लोगों को जेलों में डालने का मैंने कभी फेवर नहीं। सियासत में रवादारी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। खिदमत और पॉलिसी की बेस पे एक दूसरे के साथ आप मुकाबला करें, बजाय इसके कि अपने मुखालिफिन को आप जो उनको जेलों में डालें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। आपको बता रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। और ख़बर यह है कि पीपी नून लीग की पार्टी तंजीमों में आईनी ओहदों के लिए मुशावरत। ज़राए ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी का इमरान नदीम शिगरी को स्पीकर जीबी असम्बली बनाने का फैसला। पीपी क़यादत ने इमरान नदीम को स्पीकर जीबी असम्बली बनाने की मंजूरी दे दी। जहांगीर खान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। बताइए जहांगीर। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रुकने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इमरान नदीम शिगरी को अब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का स्पीकर बनाने का फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लिया है। क़यादत ने मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान नदीम शिगरी GBA 12 शिगर से रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं। इसी तरह औरंगजेब खान एडवोकेट से मुतल्लिक ज़राए का दावा है कि उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अगले गवर्नर को के लिए उनको हार्ड फेवरेट करार दिया जा रहा है, उनको बनाए जाने का इम्कान है। वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं और सीनियर कानूनदान हैं और इस वक्त सीनियर नायब सदर नून लीग गिलगित बल्तिस्तान भी हैं। इसी तरह इब्राहिम सनाई डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का इम्कान है। ये GBA 22 घांचे से रुकने असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। जो मुआहिदा हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन शराकत इक़्तिदार के हवाले से, उसके तहत गवर्नर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को, जबकि स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। जी ठीक है जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया।
पुलिस ने कराची के इलाके DHA फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने के वाकये में फरार होने वाले तीसरे शख्स को भी हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद में ड्राइवर जाहिद और पीछे बैठा शख्स बहादुर शामिल हैं। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद कस्बा कॉलोनी में छापा मारा। जराए का कहना है 2 अफराद का ताल्लुक कस्बा कटी पहाड़ी और एक का ताल्लुक बनारस से है। पुलिस ने जेर हिरासत तीनों अफराद के मेडिकल टेस्ट करवाए। इब्तिदाई इतला के मुताबिक तीनों ने नशा किया हुआ था। पुलिस जराए का कहना है हिरासत में लिया गया चौथा शख्स उनके साथ नहीं था। चौथा शख्स गाड़ी से टकराकर शदीद जख्मी हुआ तो लगा कि वो उनके साथ था। हादसे के बाद सुजुकी ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ, जिसका इलाज जारी है। दौरान तफ्तीश जेर हिरासत अफराद ने इंकशाफात किए। BRT प्रोजेक्ट कराची के डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की गुमशुदगी का मुकदमा उनके वालिद मोहम्मद पनाह की मुद्दत में थाना डिफेंस सी लाहौर में दर्ज कर लिया गया। नुमाइंदे खुसूसी नज़ीर शाह हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। नज़ीर बताइए। देखिए, BRT प्रोजेक्ट कराची के डायरेक्टर अब्बासी के वालिद की जानिब से थाना डिफेंस सी लाहौर में अगवा की दवात की वजह की मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें जो मोहम्मद पनाह है उनका कहना है कि मेरा बेटा ज़मीर अब्बासी डिप्टी कमिश्नर रैंक का अफसर है और BRT प्रोजेक्ट में बतौर डायरेक्टर तैनात है। ज़ाती मसरूफियात की सिलसिले में लाहौर में मौजूद था। इसी दौरान 12 जून 2026 को DHA फेज 8 में 15 से 20 नामालूम अफराद है, जिन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म सादा लिबास पहने हुए थे और चेहरे ढांपे हुए थे और मास्क भी लगा रखे थे, जिन्होंने जबरदस्ती मेरे बेटे ज़मीर अब्बासी को असले के तौर पर अगवा किया, गाड़ियों में ले गए और आज तक अदालत में पेश नहीं किया जा सका, ना ही मेरा बेटा घर वापस लौटा है। ये जो FIR है ये गुज़श्ता रोज़ दर्ज करवाई गई है, जबकि वाक़या 12 जून का बताया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि बेटे को ज़बरदस्ती उठाने पर लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बेटा बाजियाब करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई 32 साला लड़की साइमा इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में दम तोड़ गई। पिम्स जराए का कहना है साइमा बर्न सेंटर के ICU में जेर इलाज थी। उसे 19 जून को एबटाबाद से पिम्स लाया गया था। साइमा का 98% जिस्म शदीद मुतासिर था। धुएं से उसके फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचा था। आग से साइमा के जिस्म की खाल की अंदरूनी तह भी झुलस चुकी थी। साइमा को मुबैना तौर पर देवर ने तेल छिड़क कर आग लगाई थी। कराची की मकामी अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकार मुल्ज़िमान आकिब और गुलाम अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक़ कर दी। मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी का नाम शामिल नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से कहा, आपको इतनी तौफीक नहीं हो रही कि 1 माह पहले गिरफ्तार मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी डाल सकें। जो IO जेल में कैद मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता, वो तफ्तीश क्या करेगा। सरकारी वकील ने यकीन दहानी कराई कि तफ्तीशी अफसर मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी आज ही डाल देगा। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्ज़िम आकिब की निशानदही पर मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है और मुल्ज़िमान के मफरूर साथियों को गिरफ्तार करना है। मुल्ज़िमान के खिलाफ गार्डन और बोर्ड बेसन थाने में मुनशियात के मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। खाने के बाद सिर्फ चंद मिनट की वॉक मुतादिद ख़तरनाक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना खाने के बाद 30 मिनट तक मुनासिब रफ्तार से पैदल चलना न सिर्फ मोटापे में कमी का बायस बनता है, बल्कि शुगर जैसी बीमारियों से भी निजात दिलाता है। खाने के बाद चहलकदमी ब्लड शुगर और इंसुलिन की सतह में कमी लाती है। मैदा और आंतें मुतहरिक होती हैं। खाना जल्द हज़म होता है, जिससे पेट फूलने या तेज़ाबियत का ख़तरा कम होता है। जनूबी कोरिया में AI गुड़िया ने बुजुर्ग खातून की तन्हाई दूर कर दी। फ्लैट में तन्हा रहने वाली 78 साल की खातून दिन का ज़्यादातर वक्त AI गुड़िया के साथ गुजारती हैं, जो मसनूई ज़हानत के ज़रिए चलती है, बातें करके दिल बहलाती है, खाने और दवा का वक्त भी याद दिलाती है। जनूबी कोरिया में तन्हा रहने वाले मुअम्मर अफराद में AI से चलने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।